सो लास्ट क्लास में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की बात की थी। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन, और व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ, बैक व्यू एंड बॉटम व्यू। और इनके प्लेसमेंट्स का भी हमने डिस्कशन किया था कि हमें कैसे व्यूज बनाना है एंड हाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस ऑन अ पेपर, how to represent this on a paper in a correct way. What will be the position of the top view, what will be the position of front view, and what will be the position of the side view. So let me show you. This screen is visible here. Yes sir. Yes sir. मैं यहाँ से एक I'm just trying to explain you कि क्या प्लेन्स हैं। और so this is a ये AutoCAD में है? नहीं, ये AutoCAD में नहीं है। Okay. This is another CAD/CAM software, SolidWorks उसमें है। So this is your horizontal plane, this is front plane या sorry vertical plane, and this is your profile plane, ठीक है। So this is right profile plane and this object is placed here. So this is the first quadrant position. यहाँ से this is the direction of view. So in front view we'll see this, in the top view we'll see this and this, ठीक है। So देखें इसका front view, top view यहाँ पर कैसे दिखेगा। So this is the direction of view. So जैसे हमने इसको बोले कि if you enclose this object in a cube, है ना, तो इस तरह से होगा। So from this direction, this is the direction of view for the front view. So ये front view हमें नजर आया, ठीक है। Then this is the side view and this is another side view, ये वाला right side view. Right side view देखें तो ये रहा। So this is the right side view, है ना, and this is bottom view and this is back view, ये रहेगा। तो इसके व्यूज यदि हम देखें तीनों, फ्रंट, टॉप एंड राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ व्यू इज दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन, यहां से हम देखेंगे। दिस इज द फ्रंट व्यू डायरेक्शन। लेट मी करेक्ट दिस वन, दिस। सो इन द फ्रंट व्यू you will have this figure, top view. So this is the top view, ये top view होगा। This is the top view and this is back view, sorry, this is left side view, this is the left side view, ये left side view, because the direction of front view is this, ये direction, so this is the left side view. और right side view, this will be the right side view, ये right side view। So here we'll prefer the right side view क्योंकि ये feature जो है, this feature is not seen in the left side, so उस केस में हम इसका राइट साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, तब हमें ये कंप्लीट फीचर मिल जाएगा। सो लेट मी शो यू अनदर। So this is the representation of the object, ये तीन व्यूज हैं उसके। So this is front view, this is the top view and this is the left side view, and this is the three-dimensional representation of the object. So हमें ऐसा नहीं करना है कि जो टॉप व्यू है वो भी लेफ्ट फ्रंट व्यू के साथ में हमने प्लेस कर दिया, या राइट साइड व्यू हमने इसके नीचे कर दिया, या तीनों व्यू एक एक नीचे कर दिए, या तीनों व्यू जो है एक ही ऑर्डर में कर दिए, इस तरह से। नो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द लेफ्ट साइड व्यू, which is placed to the right of the
फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू के राइट में हमने प्लेस किया है इसको, ठीक। लेट मी रिप्रेजेंट दिस विथ लाइन डायग्राम. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन with hidden line. कि कुछ एजेस यहाँ पे दिख नहीं रही है, जैसे ये जो फिगर है, दिस फीचर इज हाफ यहाँ पे शो हो रहा है, बट अदर हाफ यहाँ पर है. तो यदि हम इसको व्यू कर लें, हिडन लाइन से शो कर दें, so this is how it is represented, then it will be seen. So in the front view also there are some features which are hidden. So for hidden view we use this dashed lines. जो dashed lines हमने पढ़ी थी ना, ये this is how these are represented, ये represented. So front, top and right side view. Is there any doubt now? कुछ समझ में नहीं आया हो? सर सर किसी ऑब्जेक्ट को देखकर पता कैसे चलेगा कि अपन को कौन से व्यू से उसका फ्रंट व्यू देखना है? वो हमें फिक्स करना है कि which is the direction of front view. That's it. Once we fix the direction of the front view, then side view and the top view direction will be fixed. Yes, in this case, the direction of front view is this. ये direction, that is along the z-axis. This is y-axis, this is x-axis, and this is z-axis. So the direction is along the z-axis. ये z-axis की तरफ से direction है. तो इसकी top की direction कौन सी हो गई? This is y-axis, ऊपर से. तो यहाँ से हम move करके यहाँ पे देखेंगे. So this is the top view. और left side view is this direction, and the right side view is this direction. So left side view is placed on the right profile plane, यहाँ पर है, और हम इसको rotate करके ये जो है vertical plane के साथ में इसको align कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर आ गया. और ये जो है horizontal plane, इसको हम 90 डिग्री से rotate कर रहे हैं इसे डाउन, ताकि vertical plane के साथ में, तो ये नीचे आ गया. ठीक है, this is vertical plane and this is horizontal plane, and this is the right profile plane. ठीक है. So this is okay. कोई डाउट कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी. नो सर. ठीक है, आगे बढ़े. अब नाउ अब कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज ओके ना, इतना समझ में आ गया. द प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्रोफाइल प्लेन और व्यूज का प्लेसमेंट. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सर. हाँ सर, जो आपने शीट पे ड्रॉ करने के लिए जो प्लेसमेंट बताया था, सर उसमें मेरे को दिक्कत आ रही थी. लाइक व्यू तो बन जाता है बट प्लेसमेंट मेरे को एक बार समझा दीजिए. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम. लेट मी क्लोज दिस विंडो. ओके, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम. इस फिगर का दिस वी हैव टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू, top view and side view. So the direction for the front view is this. This is the direction for the front view. So we have to look from this direction. So this is will be the front view. Top view इसके 90 डिग्री में हम टर्न करेंगे इस तरफ. So in the top view we'll have this length also, ये वाली length. ये. और side view, since this is a symmetrical object, so either left side view or the right side view can be drawn. कोई भी एक व्यू ड्रॉ कर लेंगे हम. Now, अब इस के व्यूज तीनों बनाने हैं, बट हाउ टू प्लेस देम ऑन द शीट. इस शीट पर हम कैसे प्लेस करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट या लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे. कि वी हैव दिस स्पेस अवेलेबल.
ड्राफ्टर का मूवमेंट वहां तक नहीं जा रहा है क्योंकि ड्राफ्टर मेरा बीच में लगा है. So let me take the help of roller scale. But first let me draw this space. यहाँ तक आपको विजिबल है तो मैं यहीं से बनाता हूँ. इसको भी ड्रॉप नहीं बनेगा. ओके, लेट मी रोलर स्केल. मेरा ड्राफ्टर इस जगह लगा है कि मैं यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लो स्केल का यूज नहीं कर सकता मैं. ठीक है, सो लेट मी या इसको इस तरह समझेगा. यस, नाउ आई कैन यूज दिस. So this is my space. ये बाउंड्री लाइन के अंदर की स्पेस है. लेट मी चेक द डायमेंशंस कि कितनी बड़ी है ये स्पेस. सो फ्रॉम हियर this is 30. let me mark 30 ना, ताकि यहाँ से लेके 30. So this distance is 30 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर. So this is एरिया. ये जो मैं बात करूं इस रेक्टेंगल का एरिया, इट इज 25 सेंटीमीटर बाय 30. मींस 30 सेंटीमीटर इज द लेंथ और 25 सेंटीमीटर इज दिस हाइट. ठीक है, इतना है. अब मुझे इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है. सो लेट्स फर्स्ट चेक कि जो साइज है ये, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू इस स्पेस में आएगा या नहीं आएगा. सो द डायमेंशन इज, लेंथ की बात करें सो इट इज 18 प्लस 20 प्लस 18. ये डायमेंशन जो है वो दिस इज, ये 20 है, ये 18 है और ये भी 18 है. So it is 36 plus 20, that is 56. So length L of the object, this is a 36 तो 56 सेंटीमीटर की है. ठीक है, और इसकी हाइट, सो हाइट यहां से यहां तक ये है. नो, आई थिंक इट इज नॉट इन सेंटीमीटर, दिस इज इन
चलो अच्छा रहेगा, अपना स्केल का यूज भी आ जाएगा आपको इसमें। सो दिस इज 56 सेंटीमीटर है ना, और ये 32 सेंटीमीटर है। सो इसकी हाइट h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये सॉरी, this is not height, huh? This is the width. This is width. Width W 32. And now height H. So height H, यहां से ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ये। So this is 16, ये 16 है और यहां तक 16 है, प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 18 यहां से यहां तक। So this distance is 8, ये 8 है और ये 16 है। So total is 8 plus 16 is 24 centimeter. 24 centimeter. So if I enclose this in a block, एक ब्लॉक में यदि इंक्लोज करूं फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू को, साइड व्यू को, तो मेरा फ्रंट व्यू का जो ब्लॉक बनेगा वो बनेगा 56 सेंटीमीटर बाय ये मेरा फ्रंट व्यू का ब्लॉक रहेगा। और टॉप व्यू का जो ब्लॉक रहेगा ये रहेगा टॉप व्यू का। अभी मैं प्लेसमेंट की नहीं, मैं सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, हाँ? और साइड व्यू का जो रहेगा ये साइड व्यू, मतलब इस स्पेस में मेरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की स्पेस हो गई जितना ये कवर करेगी यहाँ पे अंदर। अब यदि ये सेंटीमीटर में लेता हूं मैं 56, 32 और 24, तो फ्रंट व्यू में दिस लेंथ इज विजिबल, सो दिस इज 56, सो दिस विल बी ऑफ 56, और दूसरा जाएगा ये हाइट वाला, ऊपर हाइट दिखेगी फ्रंट व्यू में। So this height is 24 mm. So this is 24 mm. ये 24 mm का। और टॉप व्यू में जो देखूंगा तो ये लेंथ तो मिलेगी। So this 56 will be visible और ये width हो जाएगी, that is 32. So this is 32 का। और साइड व्यू में यदि हम देखेंगे तो साइड व्यू में दिस लेंथ विल बी ऑफ 32 एंड दिस विल बी 24। ये तो इन फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा और फ्रंट व्यू के पास में साइड व्यू आएगा। तो इन दोनों व्यू को प्लेस करने के लिए ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये उतनी होना चाहिए, मतलब 56 प्लस 32, 56 प्लस 32। सो तो स्पेस चाहिए हमें ये वाली, यहाँ पे ये स्पेस ये चाहिए हमें
56 प्लस 32 mm, सर 32 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में दी है तो, सो दिस विल कम आउट 8 and 8 मीन्स 88 सेंटीमीटर, जिसमें दोनों व्यूज 5-5 चिपके हुए आएंगे, तो इतनी लेंथ चाहिए। अभी हमने स्पेस तो बची नहीं कि कितनी स्पेस बचेगी, और ये वाली जो स्पेस लें, तो ये वाली स्पेस जो है इसमें आएगा योर फ्रंट व्यू यहाँ आया, टॉप व्यू यहाँ आया, तो फ्रंट व्यू की मतलब ये लेंथ 24 और ये 32, सो ये आएगा 24 प्लस 32, इतनी स्पेस हमें यहाँ चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 3 और 2 5, 4 और 2 6, सो इट इज 56 सेंटीमीटर। तो इसके हम 1:1 फुल साइज स्केल में इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना सकते हैं क्या इस स्पेस में, जो कि है 30 सेंटीमीटर इन लेंथ यहां से यहां तक, और 25 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। कैन वी ड्रॉ? नो सर। नो, नहीं बना सकते। तब हमने जो इंजीनियरिंग स्केल्स पढ़ा था, जो ग्राफिकल स्केल्स, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव, तब हमें इसकी स्केलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये व्यूज यहाँ पे अकोमोडेट हो पाएंगे, अदरवाइज ये व्यूज इस स्पेस में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। तो स्केल रेशो क्या ले, तो वो जो स्केल रेशो है, देयर आर सम स्टैंडर्ड रेशोज आर देयर। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है और जो पेपर है उसकी साइज छोटी है, तो हमें कौन से टाइप का स्केल यूज करना पड़ेगा? Which type of scale we'll use? In large scale or reduced scale? कोई बताएगा? Reduced scale. Yes. In this case, we have to use reduced scale. Now, reduced scale तो कितना? Reduced scale how much? कितना? सर लार्जेस्ट लेंथ के हिसाब से लेंगे। Yes, या तो वो है, या there are some standard ratios, जैसे 1:2, 1:20, 1:200, 1:2000, 1:2 lakh। ठीक है, ये दिस इज द रेशियो ऑफ स्केल, कि हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को हाफ कर लेंगे, दैट इज 1/2 रेशियो लेंगे RF, और वी कैन टेक RF ऑफ 1/20 और 1/200 और 1/2000 और 1/2000, 20,000 और 1/2 lakh और 1/20 lakh, इस तरह से। दिस इज सीरीज ऑफ 1/2 स्केलिंग हाफ वाली, उसके मल्टीपल्स हैं। और 1/3, 1/3, 1/30, 1/300, 1/3000, 1/30,000, 1/3 lakh, 1/30 lakh, likewise. Then 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:9, 1:10, ये रेशोज है, और इनकी फिर सीरीज है कंटिन्यूस। दिस आर द स्टैंडर्ड सीरीज, स्टैंडर्ड रेशोज इनके स्केलिंग के लिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर अपन 2/3 भी कर सकते हैं, 1/1.5। हाँ कर सकते हैं ना, 1 बाय, क्योंकि सर 1/1.5 या फिर 2/3। 2/3 नहीं, रेशियो स्टैंडर्ड जो है इट इज 1/2 या 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से वी कैन टेक स्टैंडर्ड रेशियोज, स्टैंडर्ड जो है स्केलिंग, है ना। सो प्रॉब्लम समझ में आया कि आई कैन नॉट ड्रॉ this object views on this space, therefore I will use a scale। ठीक है, तो मैं स्केल यूज करूंगा। अब मेरा स्केल कितना रहेगा, जैसे यदि मैं इफ आई एम टेकिंग द स्केल ऑफ 1/2, यदि मैंने 1/2 का स्केल लिया, इट मींस इसके जो सारे डायमेंशन है वो हाफ हो जाएंगे। सो लेंथ कितना हो जाएगा देन इन उस केस में, दिस विल बिकम 28, दिस विल बिकम 16, दिस विल बिकम 12। सो ये अकोमोडेट हो सकता है? नहीं हो सकता। 30 और 25, ये रेशो 1/2 का मैं नहीं यूज कर सकता, क्योंकि लेंथ ही मेरी 28 सेंटीमीटर आएगी उस केस में। ठीक है,
और यहाँ पर ये कितना है 30 सेंटीमीटर का डायमेंशन है। सो 30 सेंटीमीटर का डायमेंशन ये लेंथ में मुझे फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों बनाना है। तो 56 प्लस 32 मतलब 88 सेंटीमीटर के अवेलेबल स्पेस है। ठीक है, सो 1/2 वाला रेशो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 28 ये हो जाएगा प्लस 16 ये हो जाएगा। सो इट विल बी 38 प्लस 38 प्लस 6 मतलब 44 सेंटीमीटर होगा, तो ये वर्क नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क। सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हम स्केल कब लेंगे। दिस इज फॉर दिस पर्पस। उस पर्पस से आपको ये समझाया था। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग दिस, ये मैंने सेंटीमीटर में लिए थे और पर्पस ये था बताने का कि इस स्पेस में ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो अब हम इसका स्केल फैक्टर क्या लें? तो उस केस में मान लो यदि ये सेंटीमीटर में होते, इफ दिस डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, इन दैट केस कैन वी टेक इस 1/4 रेशो, इसका 1/4 रेशो लेके कर सकते थे क्या? 56 का 1/4 मतलब इट विल बी 14, और ये जो है ये हो जाता 8, 14 1/4 की स्केल रेशो में, सो इट विल बी 8 और ये 6 होता। तो यहाँ पर कितना हमें चाहिए होता? 14 प्लस 6 यानी कि 20, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ये 30 सेंटीमीटर है, तो फ्रंट व्यू के पड़ोस में साइड व्यू बनता है, तो फ्रंट व्यू के पड़ोस में साइड व्यू तो यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ पर से ये 56 की लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो यदि रेशो हम इतना लेते हैं 1/4, तो ये आएगा 14 प्लस 6 यानी 20। तो ये है टोटल 30 सेंटीमीटर। हमें 20 सेंटीमीटर की स्पेस रिक्वायर्ड है फ्रंट व्यू और साइड व्यू के लिए। तो कितनी स्पेस छोड़ें? इधर से कितनी छोड़ें, इधर से कितनी छोड़ें, और इन दोनों के बीच में कितनी छोड़ें? कितनी निकलेगी? अरे समझ में आया या नहीं आया, इसलिए चुप है? भैया क्लियरली बता दो, सो दैट। ये लास्ट वाला नहीं है, मतलब कैसे कितनी लेंथ ये छोड़ेंगे ये सर नहीं को आया। फिर से ये वाला समझ नहीं बता आया। हाँ, अब मैं समझाता हूँ पेपर, है ना? So this block is of 30 centimeter and this dimension is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैंने स्केल रेशो क्या यूज किया? 1:4, 1:4 का आरएफ लिया, मतलब जो भी डायमेंशन इसके वो 1/4 होके रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब ले फ्रंट व्यू, ये जो लेंथ है, ये जो फ्रंट व्यू के लिए ब्लॉक है, ये कितना चाहिए लेंथ में? यहाँ से यहाँ तक 14, तो यहाँ से कितना चाहिए? 14, है ना? 14 प्लस ये स्पेस आएगी, दैट इज 6, सॉरी हाँ, 14 प्लस 8, हाँ 22, हाइट नहीं, लेंथ आएगी ना ये विड्थ साइड व्यू की। सो 14 प्लस 22, तो 22 सेंटीमीटर तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना? सर 4 सेंटीमीटर दोनों साइड माइनस 22, टोटल बचा 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को हमें इस तरह से डिवाइड करना है, जो 8 सेंटीमीटर की स्पेस बच जाएगी उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों व्यूज के बीच में गैप रहे, फ्रंट व्यू और साइड व्यू के बीच में, और ये मार्जिन लाइन के बीच में भी गैप रहे। तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू के बीच में 3 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ देते हैं। अब कितनी स्पेस बच गई? 6 सेंटीमीटर, टोटल 8 है ना? हाँ, तो 8 में से 5 बचा। हाँ 5 बची, तो 5 में से हम क्या करते हैं? 2.5 इधर से और 2.5 इधर से छोड़ देते हैं, या
लेट मी इस तरह से कर देते हैं हम कि 4 सेंटीमीटर की स्पेस दोनों व्यूज के बीच की छोड़ दें, और फ्रंट व्यू और इस एज के बीच की जो है, मतलब यहां से हम ये ड्रॉ कर लें, ये लाइन, रफ लाइन, ये हो गया स्पेस फ्रंट व्यू के लिए जो कि 2 सेंटीमीटर है, और सिमिलरली इधर से भी इतना ही हमने ये स्पेस छोड़ दिया, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कितना स्पेस है, दिस इज 24 हो गया ना, तो ये है 30, दिस इज 26 सेंटीमीटर की स्पेस है। अब इस 26 में क्या करा हमने, फ्रंट व्यू लेटेस्ट यहां से स्टार्ट किया, कि यहां से लेके फ्रंट व्यू स्टार्ट किया है, और फ्रंट व्यू हमारा यहां से लेके जाएगा यहां तक का, से दिस इज यहां से स्टार्ट किया, तो ये फ्रंट व्यू हमारा गया यहां तक, ये, सो दिस स्पेस इज 14 सेंटीमीटर। ये फिर हमने यहां से 14 सेंटीमीटर से कितनी स्पेस छोड़ दी, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की छोड़ दी स्पेस, ये 4 सेंटीमीटर स्पेस, ये, और यहां से हमने स्टार्ट किया हमारा साइड व्यू वाला ब्लॉक, ये, तो ये हमने ऐसा ये किया, और ये स्पेस दोनों के बीच की छूट जाएगी, दिस इज द स्पेस, ये स्पेस हो गई जो दोनों व्यू की गैप रहेगी, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक है, सो दिस इज क्लियर और नॉट? सर यस सर। सर अपन ने 4 सेंटीमीटर की इनके बीच में स्पेस क्यों छोड़ी जब अपन साइड में 2 सेंटीमीटर की छोड़ चुके हैं? तो ये शीट की एजेस हैं या बाउंड्री एजेस हैं। ठीक है, हमारी ये शीट की एजेस, हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है ये वो वाली लाइन है, और इसके अंदर हमें हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू लेना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा व्यू इससे चिपका के नहीं, क्योंकि हमें डायमेंशनिंग भी करना है, तो जब हम डायमेंशनिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस इस व्यू के साथ में यहां चाहिए, इस तरफ भी चाहिए, इस तरफ भी चाहिए, सिमिलरली फॉर द साइड व्यू आल्सो, यहां पर भी स्पेस चाहिए और यहां पर भी स्पेस चाहिए, क्योंकि हम डायमेंशन प्लेस करेंगे इस जगह में। ठीक है, समझ में आया या नहीं? यस सर। इसलिए हमने ये गैप छोड़ी है इनके बीच में, कि ये व्यू से एज के बीच की दूरी, इस व्यू से इस एज की दूरी, और दोनों के बीच में गैप। ना ये तो फिक्स हो गया कि ये इस तरह से यहां प्लेस होगा। अब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का क्या, ये इसमें कितनी गैप छोड़नी है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बीच में कितनी गैप छोड़नी है? सो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू में ये आएगा 32, मतलब ये आएगा 8, और फ्रंट व्यू आएगा 24, मतलब ये आएगा 6। 8 और 6 कितना आएगा, 14। ठीक है, सो 25 में से 14 गया, 25 में से 14 गया, तो बचा कितना, 11 बचा। 11। ठीक है, अब 11 पे हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर इस एज से छोड़ देते हैं, तो 3 सेंटीमीटर इस एज से हमने छोड़ा, ये 3 सेंटीमीटर इस एज से छोड़ दी। ठीक है, और इस एज से भी कितना छोड़ देंगे हम, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हम यहां से भी छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया हमने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 25 में से ये 3 माइनस गया, दैट इज 22, ये 22 में से ये 3 गया, कितना बचा, 19। अब ये 19 की स्पेस है, अब 19 की स्पेस में से हमें कितना रिक्वायरमेंट है, 14 का, 8 + 6 14 है ना, तो 19 में से 14 अब माइनस हुआ तो कितना बचा, 5। तो हम क्या करते हैं कि 5 की गैप दोनों व्यूज के बीच में रख लेते हैं, तो 5 की गैप जो है वो हम इन दोनों के बीच में क्रिएट कर लेंगे। तो यहां से लेके अब हमने मान लो फ्रंट व्यू का यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट से, तो यहां से लेके ये यहां तक आया, ये ब्लॉक हो गया हमारा फ्रंट व्यू का, यहां तक चला,
और फिर यहां से ये चला, दैट इज फ्रंट व्यू ना, 24 मतलब ये 6, तो यहां से ये चला 6 तक, ये 6 तक का ब्लॉक, तो ये आपका फ्रंट व्यू का ब्लॉक आ गया। अब इससे जो है वो टॉप व्यू की ब्लॉक का जो डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में अब कितना स्पेस बच रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का यहाँ से मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा, दिस इज द 5 सेंटीमीटर गैप। ये तो यहां से हमारा टॉप व्यू स्टार्ट हो जाएगा ये, और ये यहां तक जाएगा, दैट इज 32 यानी 8 के बराबर। तो ये हो गया फ्रंट व्यू का ब्लॉक, ये हो गया टॉप व्यू वाला ब्लॉक, मतलब फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इन दोनों व्यूज के बीच में ये गैप छूटेगी 5 सेंटीमीटर की, और ये टॉप व्यू का ये ब्लॉक, टॉप व्यू की ये स्पेस ऑक्यूपाई होगी, और साइड व्यू में ये स्पेस ऑक्यूपाई होगी, यहाँ से ये साइड व्यू रहेगा, ये दिस इज साइड व्यू, ये साइड व्यू। तो ये स्पेस 4 सेंटीमीटर दोनों व्यूज के बीच में, ये स्पेस 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में, ये स्पेस 3 सेंटीमीटर, ये स्पेस 3 सेंटीमीटर है, दिस स्पेस इज 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की और ये 2 सेंटीमीटर की स्पेस है। सो दिस इज हाउ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू प्लेस करना है हमें यहाँ पर। इज दिस ओके? ये समझ में आया या नहीं आया? सभी को? भैया किसी को यदि कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, पूछ लीजिए। दिस इज अ वेरी सिंपल, कोई टफ नहीं है। तो हमें ऐसे नहीं बनाने जैसे आपने पिछली बार बनाए थे कि ये फ्रंट व्यू बना दिया, फिर ये टॉप व्यू बना दिया, फिर ये बोले साइड व्यू बना दिया, या किसी ने ऐसे बनाए थे ये। सो ना, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट व्यू, उसके नीचे टॉप व्यू, और उसके साइड में यहाँ पे साइड व्यू, और ये स्पेस दो व्यू के बीच में। यदि हमारे पास में स्पेस अवेलेबल ज्यादा है तो हम अकॉर्डिंगली दिस वी कैन एडजस्ट, क्योंकि हम हो सकता है इस स्पेस में एक प्रॉब्लम के बजाय 2 प्रॉब्लम कर ले। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये जो शीट है, दिस इज A3 साइज ऑफ शीट। तो इस A3 साइज ऑफ शीट को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये A4 हो जाएगा और ये अगला A4 हो जाएगा। तो इसमें हम 2 प्रॉब्लम करेंगे, एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम यहाँ पर। ठीक है? अगर बड़ा साइज है, हाफ शीट लेते हैं, तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो बट दिस इज द साइज इज स्मॉल। जैसे आपकी स्केचबुक, यदि आपकी स्केचबुक की हम बात करें तो आपका एक पेज में एक फिगर के व्यूज आएंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, और दूसरे पेज में दूसरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब एक पेज में हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? सो ये दिस इज ओके और नॉट? समझ में आया कि नहीं? आगे सर। यदि किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सो ये स्केलिंग के लिए मैंने आपको समझाया। नाउ आई एम टेकिंग दिस इज, तब यहां पर हम शीट में जो लिखेंगे ना स्केल, जो टाइटल ब्लॉक में हम बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं स्केल, तो वहां पर लिखेंगे 1:4। यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो ये वाला, तो हम स्केल में यहाँ पे लिखेंगे स्केल में स्केल रेशियो 1/4। सो नाउ लेट अस टेक कि ये जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, दीज आर इन गिवन इन mm, ये mm में दिए हैं, not in centimeter. All dimensions these are in mm. So 56 mm, 32 mm और 24 mm ये हो गए। तो ये तो इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 5.6 सेंटीमीटर होगा, ये 3.2 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर। तो एम्पल स्पेस इज अवेलेबल टू ड्रॉ दिस। तब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। We will take some suitable point. हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैं अभी स्केल को साइड में रख रहा हूँ, इस ड्राफ्टर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ स्केल
इसका जो है वो चेंज हो रहा है वो लोकेशन के कारण। सो एक बार लोकेशन चेंज कर लूंगा तो फिर उसको यूज कर लेंगे। तो आई एम टेकिंग कि ये जो एज है, मैं इस एज से एक पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस यहाँ से ले लेता हूँ। से मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रंट व्यू बनाना है, अब टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो विच व्यू, किस व्यू से मैं स्टार्ट करूं? सो इन द फ्रंट व्यू मुझे क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू में ये लाइन आएगी एंड दिस लाइन इज प्रोजेक्टेड टू दिस, इस प्लेन में प्रोजेक्ट होगी तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मींस देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 56 सेंटीमीटर, 56 mm की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसे, 56 mm की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो मैं एक 56 mm की एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। So this is my starting point, यहाँ से लेता हूँ। So 1 2 3 4 5 and 55 and 56. So this is 56 लाइन मिली मुझे, ठीक है। और देन और क्या दिखेगा? दिस इज फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये भी फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट होगा। दिस इज आल्सो प्रोजेक्टेड इन द फ्रंट व्यू, दिस इज आल्सो प्रोजेक्टेड इन द फ्रंट व्यू। तो यहां से दिस हाइट, ये हाइट विजिबल है। सो दिस इज 8 mm, तो मुझे 8 mm की हाइट दिखेगी। तो मैं यहां से 8 mm की लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर की तरफ, और कितना होगा 8 mm की, 8 mm लाइन पे ये, फिर ये लाइन यहाँ से, यदि मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ से ये 56 की लाइन बना दी, मतलब ये 56 की लाइन बन गई। देन यहाँ पर ये रेक्टेंगल है जो कि यहाँ से 18 mm पे है और ये 20 mm की लेंथ का है, और यहाँ से 18 mm है। तो मैं इसी को मार्क कर लेता हूँ पहले। सो दिस इज 56 और मैंने यहाँ पे मार्क किया यहाँ से 18, दिस इज 18, और यहाँ से भी मार्क करूंगा, यहाँ से 20 मार्क कर लूंगा। तो यहाँ से 20, 10 और ये 10, 20, सो दिस इज 20, ये हो गया। यहाँ से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होंगी, ये लाइंस 8 mm की है, 8 mm की, यहाँ से भी 8 mm, यहाँ से भी 8 mm। अब मैं 8 mm की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इससे नहीं होगा, इसमें 2 के डिविजन हैं, स्केल को यूज करना पड़ेगा। दिस इज 5 6 7 और ये 8, दिस इज 8, ये 8 की लाइन बन गई यहाँ से। इसको, दिस लाइन इज विजिबल और नॉट, दिख रही है ये वाली? दिस इज विजिबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन है। मैं इसी के पैरेलल यहां से भी लाइन बना लूंगा, यहां से। ये लाइन बनी, यहाँ से वर्टिकल लाइन है, यहाँ से वर्टिकल लाइन है। सो ये बॉटम वाला कंप्लीट हो रहा है, मतलब बेस जो फ्रंट का नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये। अब व्हाट अबाउट दिस रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल मुझे जो है प्रोजेक्टेड मिलेगा, क्योंकि प्लेन में प्रोजेक्ट होगा तो ये इस लेंथ का होगा, दिस लेंथ, मतलब ये लेंथ, यानी दिस इज
लेंथ। सो 16 का मुझे 16 की हाइट बनानी है, और यहाँ से 8 mm का ये लेना है, 8 mm, और देन अगेन यहाँ से ये 8 और फिर यहाँ से 16, क्योंकि फ्रंट में यही रेक्टेंगल दिखेगा, एक रेक्टेंगल। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? इस एज से, या राइट साइड कॉर्नर से 24, और यहाँ से कितना होगा, चलो यहाँ से राइट से ये डायमेंशन दिया है। सो फ्रॉम दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 में लेता हूं, तो इस तरफ से मैं मेजर करूंगा 24 mm। सो यहाँ से 24 mm मेजर करूंगा। सो दिस इज 24, ओके। सो दिस इज 24, ये आ गया 24, यहाँ पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट से मुझे ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऊपर की तरफ। और कितनी लेंथ की जाएगी वो? 16 mm। सो 16 mm की ये लाइन है। 16 मार्क कर लेता हूं इस पे। इसके ड्राफ्टर किसी स्केल में मजा नहीं, ड्राफ्टर का स्केल ही यूज करना पड़ेगा। एनी हाउ, थोड़ा सा वर्किंग में ऊपर की तरफ प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन इट्स ओके। यहां से लेता हूं, दिस इज 10, 15, और ये 16 वाली, 16 की लाइन मैंने बना दिया। देन यहां से कितना है? 8 mm। 8 mm का यहां से ड्रॉ करना है, यहां से दिस इज नॉट विजिबल विद दिस। 8 तो इसमें आ जाएगा, 2 के टर्म्स है ना, ठीक है। सो दिस इज 5, 6, 7 और 8, 8 mm। दिस इज 8। फिर अगेन यहां से डाउनवर्ड आऊंगा इतना। सो आई थिंक, और बताइए फ्रंट व्यू में और क्या दिखेगा? दिस कंप्लीट्स द फ्रंट व्यू, या और कुछ बचा है फीचर? यस, एनीवन? कोई जवाब नहीं? हम लोग जुड़े तो है ना भाई, कनेक्टेड तो है ना, ऐसा तो नहीं? सर, हाँ सर ये जो 3 नीचे लाइन है, हाँ, ये सर तो इनके जो मतलब सेंटर वाला तो परफेक्ट है, पर सर उसके बाद जो मुड़ा हुआ है तो साइड के ब्लॉक छोटे हैं, तो सर इनके बीच में एक और लाइन आएगी। ये जो नहीं, दोनों साइड के ब्लॉक हैं, नहीं आएगी। तो क्यों? एक मिनट, हाँ, इधर से देखो, जैसे ये जो है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, हमने 12 वाला मार्क किया कि नहीं? नहीं किया। ये 12 वाली बात कर रहे हो ना? हाँ यस सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 12 वाली आएगी। तो यहाँ से ट्वेल्व पे, सो दिस इज 10, और ये 11, और ये 12 यहाँ पर, और सिमिलरली 12 इधर भी। दिस इज 10, 11, और ये 12। हाँ ठीक है, बराबर, करेक्ट। तो ये
और ये, ठीक है, क्योंकि ये 12 है तो ये एज, जैसे ये एज इस तरफ से ये दिख रही है, इस तरफ से भी एज दिखेगी इसी। तो वी हैव दिस रेक्टेंगल, और इसका छोटा ये जो रेक्टेंगल, इंक्लाइन रेक्टेंगल जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर, ये, तो ये छोटा रेक्टेंगल दिखेगा। तो ऐसे ही इस टाइप में दिखेगा, दिस इज वन, ये बीच वाला, फिर ये वाला, और ये छोटा। और कुछ इसमें फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ या कुछ बचा है? सो नाउ फ्रंट व्यू इज कंप्लीटेड। ओके, अब हम टॉप व्यू कंप्लीट करते हैं। सो फॉर ड्राइंग द टॉप व्यू हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे, ये जितनी भी लाइन से ये सभी से डाउनवर्ड। ये जैसे हम यहाँ पे आए, तो यहां से ये प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया, क्योंकि ये की लेंथ टॉप व्यू में भी हमें आएगी। ये हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, थोड़ी सी लाइन जो है वो डार्क हो रही है, इट इज फिर ये वाली के लिए ये यहाँ से भी ये, यहाँ से भी ये लाइन ड्रॉ की, और ये वाली लाइन छोड़ दी। These are the projectors for the top view. टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्टर्स हमने बना लिए हैं। ठीक है, सो टॉप व्यू में भी ये लेंथ आएगी, तो ये लेंथ आ गई सबकी इनकी। अब टॉप व्यू कहां से हम स्टार्ट करें? शीट देखो, हमने इसको लगा ही नहीं ना, तो पोजीशन चेंज हो गई इसकी। यस, अब बताएं आप कि हम टॉप व्यू कहां से स्टार्ट करें? तो हम एक ये स्पेस छोड़ दी हमने इन दोनों के बीच में, अप्रोक्सीमेटली, जैसे यहाँ पर ये अभी जो डिस्टेंस, दिस इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन छोड़ दी। तो ये हमारी होगी टॉप व्यू की एक एज, आउटर एज। ठीक है, ये कौन सी? पीछे वाली एज, ये वाली, ये पीछे वाली एज हमारे पास। अब हम यहाँ इस तरफ आएंगे, तो यहाँ से इस तरफ ये, तो इस पीछे वाली एज से, इस पीछे वाली एज से ये वाली एज मैंने बनाई अभी, ये दिस इज दैट एज। इस एज से मुझे इस तरफ आना है, ये दिखेगा। सो दिस इज 16, मतलब यहां से मुझे 16 पे ये लाइन बनानी है नीचे की तरफ। सिमिलरली ये भी 16 है। सो और फिर यहां से ये 12 पर जाना है, और यहां से भी ये 12 पर जाना है। तो ये रही ये वाली एज, यहां से ये 16 पे जाएगी। सो मैं इसको यहाँ पे 16 मार्क कर लेता हूं। So this is 15 और ये 16, this is 16, ये मैंने मार्क की और ये बनाई यहाँ पे 16, ये 16 की लाइन हो गई। ठीक है, ये 16 वाली। सिमिलरली इस तरफ भी है, तो हम ये मार्क कर लेते हैं कि 16 इस तरफ भी, यहाँ पर ये जोड़ देते हैं इसको। ये 16 दोनों तरफ की आ गई। अब इधर से भी 12 जाना है और इधर से भी 12 जाना है, तो है हमारे पास में ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 12 है। प्रोजेक्टर आई गया है फ्रंट व्यू से, तो हम यहां से, अब हमें क्या करना है कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक का ये पोर्शन डार्क कर देना है, और यहां से स्टार्ट करके यहां तक का पोर्शन डार्क कर देना, ये डार्क लाइन से। ठीक है, तो ये यहां इस पॉइंट पे पहुंच गए और इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, ये कितना है? 20 वाला है, ये 20। अब ये कितना दूरी पर है यहां से? सो यहां से दिस इज अगेन 16, ये 16 के पर ही है,
तो यहाँ से 16 पे हमें मार्क करना है, तो ऊपर से 32 ये रहा, यहाँ से 16 ये रहा। अब ये 16 कहाँ मार्क होगा? ये जो 16 का डिस्टेंस है यहाँ पे मार्क होगा, ये 20 वाला बीच का जो स्पेस है ये यहाँ पर, ये लाइन, दो इनर लाइन। सो दिस इज द इनर लाइन, एक ये वाली, सॉरी ये वाली और ये वाली जो 20 की है। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे और ये लाइन बना देंगे 20 वाली, ये लाइन कौन सी? ये वाली 20 की, ये 20 की बनी, क्योंकि ये लाइन तो इंक्लाइंड है, ये लाइन तो इंक्लाइंड है। ये 20 वाली लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। सो ये 20 वाली लाइन, अब इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। सो हम ज्वाइन कर देते हैं इसको। सो दिस वे वी विल ज्वाइन दिस, इसको यहां से हम लेके यहां तक में ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। और सिमिलरली इस तरफ से भी हम ज्वाइन करेंगे इसको। ये ज्वाइन किया हमने, ठीक है। अब क्या बच गया इसमें? ये वाला रेक्टेंगल, और इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक। तो इसकी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक? ये 14 की है, और ये यहां से यहां तक 24 है, मतलब ये 10 mm, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 mm का है। तो हम यहां से 14 mm पे आएंगे और ये रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे पहले। तो 14 पे आना है, मैं यहां से बीच वाले के लिए ये, तो यहां से 14 पे, ये 14 mm पे आ रहा है, ये 14 पे। सो यहां से मैंने ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया 14 का, और यहां से ये कंप्लीट किया 8 mm का, और फिर यहां से इसको अगेन जोड़ दी, ये वाला हो गया 14/8 वाला। अब ये इसके आगे वाला रेक्टेंगल की बात करें तो यहां से हमें 24 चाहिए, तो यहां से 24, तो दिस इज 24, ये 24 है, ठीक है। तो अब हम यहां से इसको 24 पे लेंगे, ये गया 24 हो गया टोटल, ये हो गया 8। और यहां से ये 24, देखो कुछ बच गया क्या? टॉप व्यू में देखो, इसका यही दिख रहा है। अब साइड व्यू ले लो। सो अब साइड व्यू के प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लो। ये साइड व्यू में ये हाइट मिलेगी, तो यहां से सारे प्रोजेक्टर्स इस तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक प्रोजेक्टर, दूसरा प्रोजेक्टर, ये वाला प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर, ठीक है। ये प्रोजेक्टर्स हमने बना लिए। अब ये स्पेस जैसे हमने छोड़ा फ्रंट व्यू टॉप व्यू के बीच में, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी हम स्पेस छोड़ देते हैं। तो यहां से हम स्पेस कुछ छोड़ देते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज द स्पेस जितना हम छोड़ रहे हैं, वी कैन मेजर कि हम कितना छोड़ रहे हैं, वो भी माउंट कर सकते हैं। यहां से हम यहां आ जाएंगे। सो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब साइड व्यू में क्या दिखेगा?
साइड व्यू में कौन सा वाला बना रहे हैं, लेफ्ट साइड व्यू कि राइट साइड व्यू? पहले राइट बनाए क्या, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ये विजिबल है, तो राइट इस तरफ बनेगा। हाँ, हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। वो कुछ नहीं आएगा, पहले यदि हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे ना, लेफ्ट से भी, तो भी ये वाला लाइन आएगी, दिस इज 16 और दिस इज ये 16, तो 32 की एक लाइन तो दिखेगी ऐसे, तो हम यहाँ से फिक्स कर लेंगे। चलो यहाँ से कुछ डिस्टेंस हमने लिया है और हम इसी को बनाते हैं राइट साइड में। यहाँ से लिया हमने और ये स्पेस लिया और ये कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हैं, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से हमें 32 जाना है, यहाँ से हमें ये 16 और ये 16, 32, ये 16 और ये 16, 32। तो हम यहाँ से मूव कर जाते हैं 16 और 32 पे। This is 15. ये 16 हो गया और 10, 6, 30, 32. This will be 32. 16. तो ये हाइट दिखेगी, ये 16 वाली प्लस ये 8 वाली, ये 8 प्लस ये 16, 24 ऊपर, तो ये 24 ऊपर। तो उस एज से हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ पे ये, इसको भी हम डार्क कर देते हैं, ये ठीक है। ये जो स्लोप है ये दिख जाएगा हमें। तो अब यहाँ से कितना बढ़ना है, यहाँ से 14, यहाँ से 14 mm का डिस्टेंस पे ये, तो इधर से 14, इस तरफ से हम बात करें तो यहाँ से 14 पे आएंगे तो इस जगह पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ से मार्क करते हैं 14 mm। सो दिस इज 14, यहाँ से मार्क, ये 14 mm आ गए, ठीक है। और यहाँ से 16 पे ये लाइन आएगी, ठीक है। तो 16 पे तो हम गए, यहाँ से ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन, और ये 32 पे भी ये लाइन, और इसको जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है। अब ये ऊपर वाली यहाँ से ये 14 है, नीचे वाला यहाँ से कितना है, 24 है, ये 24, ये 24, तो 24 इधर है ना, 24 यहाँ दिखेगा इस नीचे वाली लाइन पे। तो हम यहाँ से 24 ले लेंगे, सो दिस इज 10, 20 और ये 24, ये 24, ये ना, और यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ देंगे इस तरह से, इस तरह से। So this completes left side view. You can draw also the right side view. राइट साइड व्यू भी हम ड्रा कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं। चलो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर इधर से आपने कैसे ड्रॉ कर दिया, दिख नहीं रहा, डिटेल तो इधर से दिख रही, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन ये होगी। तो हम ये इसके बीच में अब गैप
ये हटा देते हैं, तो अदरवाइज ये कंफ्यूज करता रहेगा। सर हम्म, ये लेफ्ट साइड व्यू फिर से बता दो। हाँ 1 मिनट, पहले राइट बना ले, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो, ये थोड़ा सिंपल है आपके लिए भी। यहाँ से आप देख रहे हो राइट साइड व्यू, तो अब यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ से जो है वो ये 8 mm प्लस ये 16 mm में 24 की लाइन दिखेगी। तो यहाँ से 24 की एक लाइन मार्क कर लो पहले, जैसे ये बनाई, यहाँ से ये यहाँ से दिस इज 10 20 24 है ना, हाँ ये 24 ये रहा। ये लाइन बन गई, ठीक है, ये वाली लाइन। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये 14 वाली लाइन दिख रही है ऊपर, है ना। तो इस वाली लाइन से मतलब 14 इस तरफ मूव करूं, तो मैं यहां से 14 इस तरफ मूव कर लेता हूं। सो दिस इज 14 ना, सो 10 और ये 14, ये 14 मूव किया मैंने ऊपर वाले, तो यहाँ जाके अब ये इंक्लाइन लाइन बनानी, पर नीचे कितना जोड़ना है, ये इतना, यहाँ से ये 24 है, यहाँ से ये 24 है, तो ये कितनी हाइट पर है, यहाँ से 8 mm वाली, मतलब ये इस लाइन पर है 24, तो यहाँ से 24 भी मार्क करो आप। सो 10 20 और ये 24, ये मार्क किया 24 ये, और यहाँ से तो 32 मार्क कर ही लूं, क्योंकि 32 तो है इसकी विड्थ। सो दिस इज 10 20 30 32, तो ये तो है, यहाँ से 8 mm ऊपर ये गए, हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से 16 पे ये लाइन दिखेगी, ये वाली, यहाँ से 16 पे, तो वो छूट गई, वो भी ड्रॉ कर देते हैं हम। ये 16 पे, ये राइट साइड व्यू, इसकी मिरर इमेज बनेगी इधर लेफ्ट साइड व्यू, ये देख लो, और दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू। अब बताइए इसमें से क्या समझ में नहीं आया। सर व्यूज के बीच में जो द डिस्टेंस दैट वी आर टेकिंग, वो कुछ भी रैंडम स्पेस ले सकते हैं क्या बीच में? ये स्पेस ना, यस सर। हाँ ये स्पेस हमें रैंडम इस तरह से ले लेना है कि यहाँ पर डायमेंशन, इसके भी डायमेंशन आ जाए और इसके भी डायमेंशन आ जाए। ओके करना है कि ये जैसे ये अभी हमने 3 सेंटीमीटर लिया, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, लेकिन यदि हम इसको 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ बनाएंगे तो फिर वो नहीं, इतना नहीं, दिस डिस्टेंस इज ओके, मतलब एक व्यू और दूसरे व्यू के बीच में आप जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर की एटलीस्ट रख लें, मिनिमम 2 सेंटीमीटर, ओके, सो दैट डायमेंशन कैन बी अकोमोडेट बिटवीन दैट स्पेस, दोनों व्यूज के, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब ये व्यूज में कोई समस्या हो तो बताइए, फिर हम इसको चेक करते हैं कि हमने सही बनाया कि नहीं। फ्रंट व्यू इज ओके, टॉप व्यू इज ओके, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बनाया हमने। अब इनने काय में पूछा था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मांगा है इन्होंने, कोई बात नहीं, चेक करें, दिस इज द आंसर। सो चेक द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू,
ठीक है, साइड व्यू, द लेफ्ट साइड व्यू, दिस इज द लेफ्ट साइड व्यू, ये रहा लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड व्यू, सो दिस इज द राइट साइड। सर व्यूज का सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है, और फ्रंट व्यू के साथ में जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू होता है और राइट साइड में राइट व्यू होता है। ये डिफरेंस है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ये हमारा फर्स्ट एंगल, ये थर्ड एंगल। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। सर वो आपने मार्जिन लाइन जो खींची है वो सर ऐसे आपने अपने मन से खींची, मतलब ऐसा दिया रहेगा क्या कि इतनी मार्जिन लाइन इसके अंदर ही बनाना है? नहीं, वो दिया रहेगा, वो शीट पे से हम ड्रॉ करेंगे कि हमारी शीट का साइज क्या है। जैसे ये हमारी A3 की शीट है ना, तो इस A3 की शीट में से हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है मार्जिन ज्यादा रखते हैं, क्योंकि यदि हम इसको फाइल में लगाना है तो यहाँ से मार्जिन छोड़ना पड़ेगा ज्यादा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको 20 mm ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, और टॉप, बॉटम और राइट यहां से 10 mm का डिस्टेंस लेके हम ये मार्जिन लाइंस बनाएंगे। ठीक है सर। हाँ सर ये मेरी मतलब बीच में भी नेटवर्क के मतलब नेटवर्क इशू कारण मैं बीच में क्लास में से मतलब आउट हो गया था। तो ये सर जो शुरुआत में जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था ना 1/4 से, हाँ हाँ तो वो जो सर वो साइड में जो छोड़ा था ना 2 सेंटीमीटर साइड में छोड़ा था, बीच में 4 सेंटीमीटर। हाँ 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 तो सर वो मतलब छोड़ने के बाद में जो ये मतलब डायग्राम मतलब फिर के बनाया था। नहीं, ये मैंने समझाया था कि यदि हम ये डायमेंशन इतने हो सेंटीमीटर में और ये हमारे पास अवेलेबल स्पेस हो तो हमें स्केल लेना पड़ेगा, तो ये स्केल लेके हमने समझाया था। अभी हमारे पास ये हमारे mm में डायमेंशन है और ये हमारे जो स्पेस है वो डायमेंशन है, तो इसमें हमें 1:1 के रेशो में हम बना सकते हैं इसको। तो ये हमने 1:1 रेशो लेके बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। यस, किसी और को कुछ पूछना हो क्वेश्चन? सर तो अभी जैसे मार्जिन के बाहर चला गया है ये राइट व्यू, तो इसको तो सेंटर में बनाएंगे ना फिर टॉप को और टॉप को और फ्रंट वाले को, तो जैसे मार्जिन के बाहर ना जाए। वो पहले प्लान नहीं था, पहले प्लान था कि लेफ्ट साइड व्यू बनाना है, तो हमने यहाँ बना दिया। लेकिन मुझे लगा कि लेफ्ट साइड व्यू बना रहा हूं मैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो मैं राइट साइड व्यू बनाया इसलिए। अदरवाइज हम इतनी स्पेस छोड़ देंगे। यदि हमें दोनों व्यूज बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, यदि हमें दोनों व्यूज बनाने हैं यहाँ पे कि लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड व्यू दोनों, तब क्या हो जाएगा, ये स्पेस प्लस इसका 2 टाइम्स स्पेस, वो टोटल व्यूज की होगी। उसके बाद में ये स्पेस जो है वो, ठीक है। ओके सर। तो मैं अकॉर्डिंगली फिर उसकी वो करना पड़ेगी स्केलिंग उतनी। अभी हमने 2 व्यूज के हिसाब से स्केलिंग की थी, इसकी प्लान की थी। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, दिस इज ओके। अब इसकी डायमेंशनिंग भी कर लो, क्योंकि ऐसा ब्लॉक बनाने से कोई मतलब नहीं, जब तक उसकी डायमेंशनिंग ना होगी वो काम का नहीं होगा। तो डायमेंशंस ले लो। डायमेंशंस जो है आपको डायमेंशन लाइन यूज करना है। सो दीज आर द डायमेंशन लाइंस, ही यूज कर सकते हैं हम इसको यहाँ से। ये भी हमने बड़ी ले ली है। नॉर्मली इसकी जो थिकनेस है, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन से बहुत थिन होगी। प्लीज यूज गुड इरेजर यार, मे बी इरेजर मेरे पास जो अवेलेबल था मैं यूज कर रहा हूँ, और अभी क्लॉथ नहीं है मेरे पास, सो यूज क्लॉथ ऑल्सो। ठीक है, तो अब डायमेंशन कर लो इसका। डायमेंशन में क्या क्या दोगे डायमेंशन, ये जो डायमेंशंस दिए हैं जो इस ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, है ना। सो फ्रंट व्यू में क्या डायमेंशंस आएंगे आपके,
फ्रंट व्यू में वी कैन हैव हाइट डायमेंशन, तो यहाँ से जो है दिस इज द हाइट, ये डायमेंशन, ये ठीक है। और ये दिस इज हाउ, ठीक है। सो हाइट डायमेंशन हमने यहाँ दिया, और ये जो है वो कितना है, दिस इज 8 mm, सो दिस इज 8, और ये वाला जो है दिस इज कितना है, 16, सो दिस इज 16, ये 16, तो ये हाइट हो गया इसका, दिस इज सफिशिएंट। और टॉप व्यू में हम यहाँ पर फ्रंट व्यू में इसका डायमेंशन दे देंगे, लेंथ का भी, तो टॉप व्यू में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये हमने दिया। और दिस इज आवर एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन, इस यहाँ पर डायमेंशन देंगे, दिस इज डायमेंशन इज कितना है, दिस डायमेंशन इज 56 टोटल। अब हम इसका डायमेंशन दे देंगे कि ये कितना है, so for that we'll draw a dimension line like this, yeah. Hello. Yes. So this dimension is कितना है ये, 18, so this is 18, और यहाँ से ये this dimension is 20, और यहाँ से again this is 16 का है। अभी ये वाला डायमेंशन हमने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ नहीं देंगे उसको, उसको हम यहाँ दे देंगे, ये दिस इज 8 mm, और इसका ये वाला डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, ये दिस डायमेंशन कितना था, 24, दिस इज 24, तो दिस इज सफिशिएंट हो गया, ये हो गया। और साइड व्यू में, या तो इस साइड में या इस साइड में कहीं भी हम एक डायमेंशन दे देंगे इसका, दिस इज कितना है ये, 14, ये 14 है, और ये वाला है 24 ये वाला, सो दिस इज, ये 16 नहीं दिया ना अभी तक हमने, हाँ ठीक, ये 16 भी देना पड़ेगा। सो यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन, और ये हमारी डायमेंशन लाइन, ये एरो हेड, ये डायमेंशन जो है वो 16 का है, तो ये 16। तो ये कहाँ की बेस्ड है आपका? अब क्या बचा है, दिस 24 बचा है ना, ये प्रोडक्ट ही आपका, सो दिस इज ये, सो दिस डायमेंशन हम यहाँ पे देंगे, तो आप यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस डायमेंशन इज 24, तो ये 24 दिया है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बच गया, 24 मतलब ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक का ये, और यहाँ से यहाँ तक का
ये हो गया 14। क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट रहती है, ठीक है, कैसे स्टूडेंट वर्जन आई थिंक सफिशिएंट डायमेंशंस आर गिवन। कुछ डायमेंशंस गलत हो गया, एक मिनट। हाँ, ये डायमेंशन मैंने रॉन्ग, दिस इज 16 इज ओके, ये वाला 18। न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर नहीं है। दिस इज 20 है, अच्छा, ओके। यहाँ तक का, यहाँ से ये जो है ये है 18, और ये डायमेंशन हमने प्लेस नहीं किया, ये यहाँ से यहाँ तक 18 है, ये 12 है, तो ये डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज 12। अब कंप्लीट हो गया। तो ये अच्छा, और स्टूडेंट जैसे सिमुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट, ठीक है, सो स्टूडेंट्स के लिए सीट्स का फिगर, फिर उसके डायमेंशंस के साथ में हमें रिप्रेजेंट करना ना, इट्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो व्यूज में कोई प्रॉब्लम है, डायमेंशनिंग में कोई प्रॉब्लम है, इशू है? सब 10 mm रह गया। कौन सा रह गया सर? ये नीचे वाले में, तो मिडिल वाला। 8 mm भी हो गया ना, सब हो गए। सर जो 8 mm के जो नीचे वाला है ना, वो वाला। 8 mm ये रहा, नहीं सर, ये नीचे वाला, नीचे वाले डायग्राम में, इसमें ये वाला। हाँ। ये दे दिया ना 8 यहाँ पे, तो उसके बाद वाला जो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 24 है, ये आ गया, और यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, ये 14 है, आ गया। ये 16 और छूट गया एक। अब इसमें देखिए ऐसा है कि ये जो है, अब आपका जो कॉस्ट है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग ने यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट इन्वॉल्वड, तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब व्यूज में कोई प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया ना? ये फिगर था, ये व्यूज हैं जो हमने ड्रॉ कर लिए। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और वो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? आई एम शेयरिंग। आप उसको फ्री हैंड स्केचिंग करके फ्रंट भी, टॉप की साइड भी बनाइए फटाफट 5 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको मैं। नहीं तो ठीक है, तो वही है, तो इसमें अपन ये चाह रहे थे कि आप एक मेरा ईमेल आईडी होगा आपके पास, ईमेल, दिस इज द फिगर, हाँ, ये वाला yes. 20 फिगर 2035 20 days 35, ये वाला जो फिगर है, आर यू एबल टू सी? यस, हाँ, सो दिस लेफ्ट फिगर, ये एक्स फ्रंट व्यू की डायरेक्शन है, तो फटाफट फ्री हैंड स्केचिंग करके बताओ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और दोनों साइड व्यू। ठीक है, दोनों साइड व्यू। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्री हैंड स्केचिंग करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर डायमेंशन लिखनी है ना पर? हाँ, फ्री हैंड स्केचिंग से। यस सर। और उसमें एक तो ये हो जाए, और दूसरा ये है कि मेरे को एक और चीज चाहिए कि थोड़ी यूएसपी याद होगा, यूएसपी है ना भाई, मेरे पास क्या अभी पिछले 3-4 महीनों में ही मेरे पास 2-3 ऐसा एक बैंगलोर की भी कंपनी है, उनका भी फोन आया, पता नहीं एकदम से इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए कि क्या है, तो उसमें क्या है कि अपन चाह रहे थे कि थोड़ा सा यूएसपी आपका
सर दोनों बनाना है? बोलो 2035 वाला। ये 20.35 ना? 2030 लेफ्ट वाला। लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला फिगर। और वो उस समय लॉकडाउन से जस्ट कॉलेजेस ओपन ही हुए थे, तो फिर वो क्या है कि टाइम भी नहीं मिला और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं बताया कि यार कहीं ज्यादा बनेगा, तो फिर उन्हें कॉल करना मेरे को एक्चुअली फिर बंद कर दिया। तो मेरे को नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होगा कि कोई है डिस्ट्रीब्यूटर, वो इंडियन प्रोडक्ट है, इट इज अ इंडियन प्रोडक्ट, हाँ इंडियन प्रोडक्ट है। तो वो तो एक्चुअली में क्या है, तो आप मेरे को थोड़ा सा इस मेल पे आप प्रपोजल बना के दीजिए, तो आई विल जस्ट डिस्कस विद माय एचओडी एंड देन है ना, उसके बाद अपन देखते हैं। अच्छा अभी दिसंबर ऑलरेडी हो गया है, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च में खत्म होता है, तो प्रोसेस वगैरह लंबी होती है, तो आप अभी देंगे तो एक्चुअली में इसको बहुत जल्दी भी अपन चाहेंगे कि इसका प्रपोजल वगैरह जो है ना अपन अप्रैल में पूरा करेंगे। यानी अपन क्या है कि क्योंकि ये 3 महीने जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम है इसमें यूनिवर्सिटी प्रोसेस, है ना, तो उसमें क्योंकि बिल पेमेंट तक का भी एक ही फाइनेंशियल ईयर में हो तो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो क्या होता है कि बीच में अटक जाता है ना। तो हाँ, और एक क्लाइंट्स आपके आपने किन किन जगह पे सप्लाई। सर मैं दिखाऊं क्या? एक मैं अभी 5 मिनट हो जान दो, बाकी के भी देखता हूँ। ओनली फ्रंट व्यू बनाना है सर क्या? ना तीनों व्यू। अच्छा 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 अच्छा, तो आप एक काम, मेरे को आपका ईमेल आईडी आप अच्छा ठीक है बिल्कुल, हाँ
हेलो, यस, हाँ बोलिए।
अच्छा, शॉक ऑफ क्यू भी कट गई है। तो यार ये तो कॉस्टली है फिर। 5,000 का? अरे नहीं यार, तो ये तो लॉन्ग, ये ऐसे कैसे हो गई यार? हाँ तो अभी तो महंगा खर्चा, उसको कुछ टेम्पररी कर दो आप, सील ऑयल सील कितने की लाएगी? अच्छा अच्छा, तो उसका कोई दूसरा है नहीं क्या तरीका? हाँ तो अभी रहने दो, उसको बाद में बताएंगे। सर दिखाऊं मैं? एक मिनट। हाँ, यस, किसने बना लिया? यस सर मैंने। आप प्रेजेंट करो। दिख नहीं रहा है संतोष। अच्छा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है, वेरी गुड। सो बाकी लोगों ने? सर मैंने बिना स्किल के बनाया, आपने बोला था फ्री हैंड तो। हाँ ठीक है, फ्री हैंड ही बोला है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। सर दिखाओ। दिखा दो। यस सर, बन गया। सर ये है। Is it okay? फ्रंट व्यू साइड व्यू में भी कुछ मिसिंग है ना? सर ये देख लीजिए। एक मिनट। हाँ, ये फ्रंट है, दिख रहा है क्या? फ्रंट व्यू एंड फ्रंट व्यू में कुछ मिसिंग है, साइड व्यू में भी कुछ मिसिंग है। अभी हम बात करते हैं क्या मिसिंग है। यस सर। ठीक है, चलो। सो इसका आंसर हम देख लें। लेट मी शो यू कि इसका आंसर लुक एट दिस। ये दिस इज टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। सर हिडन लाइंस भी बनानी थी मतलब? हाँ, हिडन लाइंस आएंगी ना। अच्छा ओके सर। हिडन लाइन तो आएंगे।
ठीक है, ओके, उल्टा बना दिया मैंने। ये देखो ये जो बीच का जो स्लॉट कटा हुआ है ना, ये टॉप व्यू में हमें दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, इसमें जो रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे। फ्रंट व्यू में तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो हमें ये डेप्थ में ये दिखेगा कि ये हिडन लाइन ये वाली और ये इतना डिस्टेंस यहाँ से अपार्ट, ये जो ये वाली का और ये वाली। सर एक बार टॉप व्यू समझा दीजिए ना सर, वो तो समझ नहीं आया। टॉप व्यू समझ में नहीं आ रहा है, चलो आ जाओ इधर। फिगर कहाँ गया हमारा, ये रहा। दिस इज द डायरेक्शन फॉर द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको ये दिखेगा। सो दिस इज रेक्टेंगल, और फिर ये वाला रेक्टेंगल, और इसके ऊपर ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा। सो यू हैव दिस फ्रंट व्यू। टॉप व्यू की बात करेंगे तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको? टॉप व्यू में ये लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज विजिबल टू यू यहां तक। फिर ये हाइट पर है, तो ये वाली जो रेक्टेंगल है वो भी इसके साथ में दिखेगा कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमें इसके साथ में ही दिखेगी। तो ये दिखेगा। देन यहां से इस तरफ जाएंगे, इस एंड से ये 8 mm का है, 8 mm के बाद में डाउन है, डाउन होके फिर इधर है। तो ये पॉइंट और इसका डाउन पॉइंट, ये लाइन जो ये एक ही उसमें जगह में दोनों ओवरलैप है। तो 8 के बाद में ये यहाँ से यही लाइन ये कॉर्नर पे मिल जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। सिमिलरली ये वाली लाइन यहाँ से चली तो ये लाइन यहाँ तक मिलेगी कॉर्नर पे, और ये कॉर्नर पे हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा ये वाला। तो एक रेक्टेंगल बड़ा वाला बनेगा जिसके एक कॉर्नर पे ये छोटा रेक्टेंगल और दूसरे कॉर्नर पे दूसरा वाला रेक्टेंगल मिलेगा, और बीच में ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, मैं शेयर करता हूं, मैंने भी कुछ बनाया था। सो लेट मी शो यू, दिस इज ये। सो दिस इज द रेक्टेंगल, ये कॉर्नर वाला एक और ये दूसरे कॉर्नर वाला रेक्टेंगल, और बीच वाला ये हो रहा है। अब दिखा? ठीक है। सो दिस इज द रेक्टेंगल, ये वाला, और ये दो रेक्टेंगल जो थे अपोजिट, और ये बीच वाला रेक्टेंगल, और ये फ्रंट व्यू। ये एक रेक्टेंगल जो ये रहा, ये वाला, और ये वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो ये वाला। ठीक है, और ये साइड व्यू। सो दिस इज हिडन लाइन, ये हिडन लाइन है। So this is how you have to draw the front view, top view and the side view. ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपको बनाना है इस तरह से। So आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, how you have to draw the front view, top view and the side view? Yes, किसी को फ्रंट व्यू समझ में नहीं आया हो, किसी को भी टॉप व्यू बनाना समझ में नहीं आया हो, किसी को भी साइड व्यू बनाना समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज पूछ सकते हैं। ये हमने कन्वेंशनली यहाँ सर एक बार डायग्राम दिखा दीजिए सर एक बार। हाँ, ये अभी हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसको हम एक क्लास में मैं आपको इसको ऑटोकैड में भी बनाना सिखा दूंगा कि ऑटोकैड में इसको हम कैसे बनाएंगे। ये रहा फिगर, यस सर। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा इसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। वो आपका असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 होगा ना? यस, फर्स्ट वाला लेटर्स का था, सेकंड वाला जो है वो स्केल्स का, थर्ड वाला कर्व का, एंड फोर्थ वाला ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का, जिसमें आपको तीनों व्यूज बनाना होंगे और उसके डायमेंशनिंग करना होगी शेप पे। ठीक है, व्यूज बनाना आपको आ गया ना, उसमें कोई समस्या तो नहीं है? और उनका प्लेसमेंट, जैसे प्लेसमेंट, हाँ। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि यहाँ फ्रंट व्यू बनाया, फिर उसके नीचे साइड व्यू बनाया, फिर उसके नीचे टॉप व्यू बनाया, ऐसा तो नहीं बनाओगे ना? नो सर। ठीक है, तो दिस इज नो सर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी इसमें मैं आपको सेक्शनिंग बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आप फेमिलियर और से हो जाएंगे, तब हम इसकी सेक्शनिंग मतलब इसको कट करेंगे और सेक्शन देखेंगे कि वो सेक्शन कैसा कट होता है। ठीक है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, बट पहले थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें,
फिर उसके बाद में, ठीक है। तो यस सर। अब आज के लिए इतना ही काफी है। आपके असाइनमेंट मेरे पास जो 1 है वो रिसीव हो गए हैं, और असाइनमेंट 2 की लिंक ओपन हो गई है आज से, और 31 दिसंबर 11:59 PM तक ओपन है। उसके बाद में वो लिंक क्लोज हो जाएगी। देन असाइनमेंट 3 की लिंक ओपन होगी, ठीक है। और असाइनमेंट 3 की लिंक आपकी जो है वो 4 जनवरी 2021 को क्लोज होगी 11:59 PM पर, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस ले लूंगा आप लोगों की। सर असाइनमेंट 1 सर इसका सब सबमिट नहीं हुआ सर, उसका सर उनका सबमिट नहीं हुआ तो सबमिट नहीं हुआ, लास्ट डेट ओवर हो गई। सर आपको सर वो साइज की प्रॉब्लम आई थी सर। हाँ, तुम्हारा तो एक्सेप्टेबल है, तुम्हारे साइज की प्रॉब्लम थी, ठीक है। सर ये असाइनमेंट्स के एवैल्यूएशन होगा ना? होगा ना, अभी मैं करूंगा ना, कल हम क्लास में इसी को करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपने जो है वो क्या क्या गलतियां की है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। मैंने भी आपको मैसेज किया था, सबमिट नहीं हुआ था। ओके सर वो सिर्फ कॉलेज के आईडी से ही सबमिट हो रही थी। हाँ, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, पर मैंने उसका रेस्ट्रिक्शन कल रिमूव कर दिया था आई थिंक। हाँ सर, मेरे पे ऑप्शन आ रहा था। अभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, पर नेक्स्ट असाइनमेंट में वो रेस्ट्रिक्शन फिर मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ताकि आप लोग सभी के पास में हमारा इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी हो। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले लें। तो कल मैं जो है वो, और मेरे साथ में अश्विन मोरवाल जो आपके लैब टीचर रहेंगे, हम दोनों जो है वो उसको आपकी जो असाइनमेंट 1 है, 2, 3 है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। लेट मी शेयर द शीट।